my dear students, how are you all? I hope पढ़ाई हो रही है। सी बच्चा एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, तो डोंट हैव एनी डाउट इन योर माइंड कि 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल नहीं होंगे, आपको डेली पढ़ाई करनी है। एंड डोंट लीव दैट रिदम, डोंट लीव दैट पैशन कि नहीं अब एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो एग्जाम नहीं होंगे। नो बच्चा, एग्जाम्स डेफिनेटली होंगे, और एग्जाम्स होंगे तो आपको स्कोर भी अच्छा ही करना है। ओके, तो जब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में नो नीड टू फियर व्हेन नीतू मैम इज हियर। तो इंग्लिश में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई हैव स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चन बैंक फॉर यू ऑल, एंड आई होप आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे होंगे। वी हैव डन 4 extracts from your question bank. We have started non-textual grammar, and I have given you one question even to सॉल्व कि देखते हैं, ट्राई करते हैं कि आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं होता। तो टुडे अगेन आई विल कंटिन्यू विद द नॉन टेक्सचुअल ग्रामर एंड वी विल कंटिन्यू विद द स्पॉटिंग द एरर सेगमेंट व्हिच इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड दिस टाइम इन द इंग्लिश पेपर ऑफ स्टेट बोर्ड। तो कैसे आपको एरर स्पॉट करना है, आई विल टीच यू दैट, और उसके साथ साथ हम नॉन टेक्सचुअल ग्रामर पोर्शन भी करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट। तो लेट्स बिगिन the non-textual grammar section of the question paper released by the board authorities. So let's begin. See students, we have started this कि you have to choose the correct alternative to make the sentence into compound sentence. Yesterday only I have told you compound sentence में आप and लगा सकते हैं, as well as लगा सकते हैं, but लगा सकते हैं, not only but also लगा सकते हैं, therefore लगा सकते हैं, so that लगा सकते हैं। ये सब sentence को compound बनाते हैं। अब कैसे आप चेक करेंगे? Let's begin. Now this we have done yesterday. Satish must work very hard to rescue his brother. To rescue is a 2 plus b1 form which is making it simple. हमको इसको compound बनाना है, तो best answer is this. Satish must work hard, very hard and rescue his brother. The main thing while transforming the sentence from simple to complex, complex to compound, you have to keep one thing in mind, the meaning must not change. Meaning same रहना चाहिए, चाहे आप simple to complex कर रहे हैं, complex to compound कर रहे हैं, या compound to simple कर रहे हैं। We were on the question number 4 yesterday. Now इस question का आंसर आपको चेक करना है। The question says the interviewer was annoyed that he had not answered his queries. Queries means doubt. तो interviewer क्यों annoyed था? क्योंकि उसने that he had not answered his queries. तो यहाँ पर that लगा है, that is making the sentence complex. आपको sentence को compound बनाना है। तो let's see कौन सा ऑप्शन बेस्ट जस्टिफाई करेगा इसके आंसर्स के साथ। द इंटरव्यूअर वॉज annoyed as he had not answered his queries. as अगेन सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो as तो नहीं लगेगा, हमें कंपाउंड बनाना है। द इंटरव्यूअर वॉज annoyed at his not answering his queries. ओके, यहाँ V1 ing लगा है। द क्वेरीज वर नॉट आंसर्ड एंड द इंटरव्यूअर वॉज annoyed, यहाँ पर एंड लगा है, 2 क्लॉजेस को जोड़ा जा रहा है। We can consider this and see the last option. The interviewer was annoyed at answering his queries. तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये मीनिंग चेंज हो रहा है। यहाँ पर एंड लगा है, सेंटेंस में एंड लगा के आप सेंटेंस को कंपाउंड बना सकते हैं। So this is the best answer for this question. Okay, now move forward to the 5th one. Now 5th one is I was surprised when I heard him reveal the secret. Reveal मतलब ओपन करना। अब when I heard, यहाँ पे when लगा है means sentence में adverb clause of time लगा है which is making it complex. हमें बनाना है compound. I was surprised to hear him talk so. Okay, I was surprised to hear him reveal the secret. I was surprised for his revealing of the secret. I was surprised to hear his revealing the secret. I was surprised to hear his reveal the secret. तो ये तो गलत है। I was surprised to hear his revealing the secret. ये his revealing V1 ing लगा है। I was surprised for his revealing of the secret. No, I was surprised to hear him reveal the secret. This is the best answer for this question. Now the next sentence is आपको चूज करना है सेंटेंस को जो बेस्ट कॉम्प्लेक्स बना पाए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिकॉज लगता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एज लगेगा, सिंस लगेगा, दैट लगेगा, उसके साथ WH वर्ड्स लगते हैं हु, वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब एडवर्ब क्लॉजेस लगते हैं विच विल मेक इट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 लगेगा,
एज लगता है। ये सब फ्रेजेस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हमें सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वी हैव टू चेक कि दीज वर्ड्स आर अवेलेबल इन द सेंटेंस। तो लेट्स बिगिन। Now first, search his room and you will find the clue. अब यहाँ and लगा है, that means sentence compound है, हमें sentence को complex बनाना है। Now, if you search his room, you would find the clue. If you search his room, you found the clue. अब यहाँ found V2 हो गया, हमें will find. Okay. Now, if you search the room, you will find the clue. If you search, now ये search V2 है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। दो ऑप्शन बचे हैं। If you searched his room, now ये V1 है, then again ये V2 है, तो ये भी गलत। Now check out, एक ही बेस्ट ऑप्शन बच रहा है। If you search his room, you will find the clue. हमने and लगा के यहाँ if लगा दिया। This is the correct option for making the sentence complex. Okay? Now next is the luggage was not misplaced but it was kept deliberately. I have told you sentence में जब भी but लगता है sentence compound हो जाता है, हमें but remove करना है और sentence को complex बनाना है। Okay, now the luggage was not misplaced but kept deliberately. तो but तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये ऑप्शन हट गया। The luggage was not misplaced although it was kept deliberately. The luggage was kept deliberately although it was not misplaced. Now ये तो sentence का meaning ही change कर रहा है। The luggage was kept deliberately to misplace it. 2 plus V1 simple में लगता है, तो ये नहीं। Sentence में जब भी दो although लगते हैं sentence complex बनता है, but हटता है तो दो although लगते हैं। So this is the best answer for making it complex. B1 is the right answer. ओके मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। व्हेन यू विल रीड दीज टू सेंटेंसेस यू योरसेल्फ विल फील द डिफरेंस कि दोनों में ऑल्दो लगा है बट इस सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो रहा है। तो सिर्फ कोई भी वर्ड लगाने से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हो जाएगा इतने से काम नहीं चलेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। Is it clear? Okay. Now next है choose correct alternative to frame WH question. आपको क्या बनाना है? WH question. आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट में एक वर्ड अंडरलाइन होगा, आपको WH क्वेश्चन बनाना है टू गेट दैट अंडरलाइंड वर्ड एज एन आंसर। तो अगर टाइम की बात हो रही है, इस वर्ड में टाइम फ्रेज है, तो आप WH वर्ड लगाएंगे व्हेन। ओके जब भी WH क्वेश्चन लगा रहे हैं आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ओके अगर किसी के काम के मैनर की बात हो रही है कि कैसे हुआ, तो आप लगाएंगे हाउ। अगर बात हो रही है क्यों हुआ, रीजन दिया जा रहा है, बिकॉज से बताया जा रहा है, आप लगाएंगे व्हाई। अगर जगह की बात हो रही है आप लगाएंगे वेयर। ऐसे ही जिस भी रीजन की या जिस भी आंसर में आपको क्या पता चल रहा है उससे रिलेटेड आपको WH क्वेश्चन बताना है। व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, व्हाट अबाउट, ये सब WH क्वेश्चन की फैमिली में आते हैं। तो लेट्स चेक कैसे आप WH क्वेश्चन बनाएंगे आंसर्स को लेके। लेट्स बिगिन। Now, some thugs tried to snatch her gold chain. Now, thugs आपको पता है the robber, one who robs. तो कुछ लुटेरे उसकी चेन खींचने की, स्नैच करने की कोशिश कर रहे थे। Now, यहाँ पे अंडरलाइन हर गोल्ड चेन। तो क्या कर रहे थे सब ठग्स क्या खींचने की कोशिश कर रहे थे? उसकी गोल्ड चेन। तो हम क्वेश्चन में क्या यूज कर रहे हैं? क्या खींचने की कोशिश कर रहे थे, क्या छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो जब भी आपका क्वेश्चन आ रहा है क्या, तो वी विल यूज व्हाट। क्लियर? अब फर्स्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। WH क्वेश्चन बनाने के लिए यू गॉट द क्वेश्चन वर्ड, लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। Whenever you are making the WH question, you must check out the verb or the tense of the given statement. Now, यहाँ पे है tried, that means V2, past tense. तो आपका क्वेश्चन भी past tense में बनना चाहिए। Okay, now what
some thugs tried to snatch. Okay, what did some thugs tried to snatch. अब जब आप did लगा रहे हैं past tense के लिए तो यहाँ V2 नहीं आएगा, तो ये तो गलत। जब भी आप do, does या did यूज कर रहे हैं, नो मैटर क्वेश्चन में, नो मैटर नेगेटिव में, इनके बाद हमेशा और हमेशा V1 आता है। did के बाद tried नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। What some thugs snatch, यहाँ tried कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है, छीनी नहीं है, तो ये तो गलत। अब ये दो बचे हैं। नाउ सी, व्हाट डिड सम थग्स ट्राई टू स्नैच। देखिए मैंने आपको बताया डिड के बाद V1 आएगा, तो ये सही है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है। जब भी आप क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, WH वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर सी, व्हाट डिड सम थग्स ट्राई टू स्नैच, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। Okay, now check out the next. Arunima was retrained as mountaineer. अरुणिमा को किस फॉर्म में रिट्रेन किया गया? माउंटेनियर। अरुणिमा को क्या रिट्रेन किया गया? माउंटेनियर। तो आपका क्वेश्चन वर्ड बनेगा what, उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। नाउ सी, What was अरुणिमा retained as? अब देखिए यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब was दिया है, तो आप उसी को ही यूज कर सकते हैं। Now what was अरुणिमा retained? अब आपको देखिए अरुणिमा was retained as, आपको as तक चाहिए क्वेश्चन में, तो यहाँ पर what was अरुणिमा retained, ये गलत। What did अरुणिमा retain? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए did के बाद V1 दे दिया है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि डिड के बाद V1 आता है, बट यहाँ पे was दिया है तो आपको was ही लगाना है, ये गलत। What was retained अरुणिमा, ये तो मीनिंग ही गलत हो गया। तो आंसर इज what was अरुणिमा retained as. This is the best answer for this question. Now question number 3rd. An exceptional battle had begun inside the train on the move. अब आपको ये बोला जा रहा है एक लड़ाई शुरू हो गई, कहाँ पर? ट्रेन के अंदर। आंसर है ट्रेन के अंदर, तो आपको इसके लिए क्वेश्चन बनाना है, कहाँ पर लड़ाई शुरू हुई? ट्रेन के अंदर। कहाँ पर? तो उसके लिए यूज होगा वेयर, क्योंकि आंसर है आपका इनसाइड द ट्रेन। आपको इसके लिए क्वेश्चन बनाना है, जो वर्ड अंडरलाइन है, जो वर्ड रेड है, उसके लिए क्वेश्चन बनाना है। हमको ये समझ में आ गया कि वहाँ पे वेयर यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब हमको हैड क्वेश्चन का दिया ही हुआ है। ओके, नाउ वेयर हैड an exceptional battle begun on the move. When तो गलती हो गया, when की जरूरत ही नहीं। Where had an exceptional battle begin? Now यहाँ begin नहीं, जब भी perfect tenses use होते हैं that means has, have और had, इनके साथ हमेशा V3 ही लगता है। यहाँ पे लगा है V1, so this is wrong. Where an exceptional battle had begun, यहाँ had begun तो यूज है, बट had कहाँ चाहिए हमें? where के बाद, तो यहाँ पर ही where had an exceptional battle begun, ये V3 है। So this is the best answer for this question. So I hope all the 3 questions are clear to you with the explanation, with the reason and with the answer. Now we will move forward to the 4th one. Now check out the next sentence. With the help of technology, I started responding the treatment. तो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना मैंने कैसे स्टार्ट किया? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। कैसे स्टार्ट किया? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है कैसे। कैसे के लिए हम यूज करेंगे हाउ। ओके, नाउ सी, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी आई started V2, that means past tense। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में चाहिए। क्लियर? नाउ हाउ आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट, हाउ तो लगा है लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, सो दिस इज रॉन्ग। हाउ डिड आई स्टार्टेड, नाउ सी, अभी तक आप चेक करना सीख गए होंगे, डिड के बाद V2 नहीं चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग। How I start
यहाँ पे अगेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. हाउ डिड आई स्टार्ट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है और यहाँ डिड के बाद V1 भी है, सो दिस इज द राइट आंसर. बेटा कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए यू मस्ट अप्लाई द लॉजिक, यू मस्ट अप्लाई ऑल द रूल्स. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रामर का, टेंसेस का, यूसेज ऑफ वर्ब का, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. यू मस्ट अप्लाई, और एक बार वो चीज़, वो रूल आप सीख गए तो फिर कहीं भी गलती नहीं होगी. ओके. Now next is Ishita invites my family members on my birthday for celebration. तो रेड हाईलाइटेड वर्ड क्या है? ऑन माई बर्थडे. दैट मीन्स इशिता ने मुझे कब इन्वाइट किया? सेलिब्रेशन के लिए, अपने बर्थडे पर. तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है? कब. कब के लिए? व्हेन. तो जब हम व्हेन यूज करेंगे तभी क्वेश्चन प्रॉपर होगा. व्हेन के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब. फॉर हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर द वर्ब वी मस्ट चेक द टेंस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. इशिता इनवाइट्स, इनवाइट्स है V1, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस. ओके. तो व्हेन इशिता इनवाइटेड माय फैमिली मेंबर्स फॉर सेलिब्रेशन, यहाँ V2 है, तो दिस इज रॉन्ग. ओके. When Ishita invite my family members for celebration, यहाँ invite V1 तो ठीक है, बट यहाँ पे helping verb नहीं दिया तो ये wrong है. When do Ishita invite my family members for celebration, अब यहाँ helping verb भी दिया है, invite भी दिया है, तो क्या ये correct है? No. इशिता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस S लगता है. ओके. नाउ when does, तो इशिता सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ डज लगा, ये चीज याद रखना. और जब डज लग गया तो यहाँ एस नहीं लगेगा. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. ऑलवेज रिमेंबर, whenever the subject is singular we use V1 plus S या ES in present tense. तो जब डू और डज की बात आ रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स डज आफ्टर देम, प्लूरल सब्जेक्ट डू यूज करते हैं. ओके. और सेंटेंस में कहीं भी डू लगा है, डज लगा है, इनके बाद V1 ही यूज होगा. अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपके सारा का सारा ग्रामर पार्ट इजीली होगा, इजीली. ओके. तो व्हेन डज इशिता इनवाइट, इनवाइट और डज ये V1, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपको सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाना है. एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने से काम नहीं चलेगा. एक्सक्लेमेटरी मार्क तो लगाना ही लगाना है, पर I am giving you 2 hints, 2 tricks to make the sentence exclamatory in the correct way. कैसे? अगर आपको सेंटेंस में वेरी मिल रहा है तो आप सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे हाउ यूज करके. अगर आपको सेंटेंस में अ वेरी मिल रहा है तो आप सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी लगाएंगे व्हाट बना के. ओके. अभी कैसे होगा? लेट्स चेक. You performed the very energetically in front of the visitors. तो यहाँ दा नहीं होगा पहली बात तो you performed very energetically in front of the visitors. मैंने आपको अभी बताया जब भी very use होगा, जब भी very use होगा हम सेंटेंस को how लगा के exclamatory बनाएंगे. Now see, how energetically in front of the visitors you perform, how energetical in front of the visitor you performs. Now performs नहीं होगा, energetical नहीं होगा, ये wrong English. You के बाद हमेशा और हमेशा V1 लगता है, V1 plus S नहीं, so this is wrong. How energetically in front of the visitors you performed. Okay. How energetically you perform in front of the visitors. अब आप ये देखिए, ये V2 है, perform. तो how energetically in front of the visitors you perform, तो ये गलत, ये भी गलत. आप इन दोनों में से देखिए. How energetically in front of the visitors you perform. This is the right answer. This is wrong. Okay, क्योंकि यहाँ again V1 लगा है, हमें टेंस भी चेक करना है, तो V2 है
यहाँ पे V2 है, दिस इज राइट, वेरी है, यहाँ पे हाउ है, दिस इज राइट, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, सो दिस इज करेक्ट, सो दिस इज द राइट आंसर। You have narrated a very romantic book. मैंने आपको अभी हिंट दिया है, जब भी सेंटेंस में a very दिया हो तो हम सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे what यूज करके। what यूज करेंगे? चेक आउट द टेंस have narrated. Perfect tense is present perfect tense. Okay, now what have you narrated a very romantic book? ये तो सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बन रहा। What book you have narrated a very romantic? No. What a romantic book you have narrated. जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के बाद लास्ट में आएगा, ओके, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। नाउ व्हाट अ रोमांटिक बुक यू हैव नरेटेड। नाउ व्हाट अ रोमांटिक बुक यू हैव नरेट, तो नरेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे V3 चाहिए, हैव के बाद V3 आएगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बेटा हर एक चीज पे ध्यान देना है, सिर्फ तुक्के नहीं मारने हैं, ओके। Now choose correct alternative to make the given sentence negative. सेंटेंस को आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो हम चेक करेंगे इस ऑप्शन में। Now Sunita is the most loyal employee of our firm. सेंटेंस को नेगेटिव आप डिग्री चेंज करके बना सकते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव आप नो सूनर यूज करके बना सकते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव आप नेगेटिव वर्ड्स यूज करके बना सकते हैं। नॉट नेवर तो इजी थिंग है, उसके अलावा भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जा सकता है। और कैसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, तो चेक आउट सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सी सुनीता इज द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय, यहाँ पे द मोस्ट लॉयल दैट मीन्स ये बना है सुपरलेटिव डिग्री में। अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो आपको डिग्री में ही चेंज करना पड़ेगा। डिग्री में चेंज करने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके नो अदर लगा के सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे होगा ये देखिए, सुनीता इज नॉट द मोस्ट डिसलॉयल, नो, नॉट और डिसलॉयल दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स नहीं, ओके। सुनीता इज द मोस्ट नॉट डिसलॉयल, ये भी नहीं। नो अदर एम्प्लॉय ऑफ आवर फर्म इज एज लॉयल एज सुनीता, ओके। नो अदर एम्प्लॉय ऑफ आवर फर्म इज द मोस्ट लॉयल, जब यहाँ नो अदर आ गया तो ये मोस्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव डिग्री का नो अदर आ रहा है तो सुपरलेटिव की मोस्ट की जरूरत ही नहीं है, या तो सुपरलेटिव या पॉजिटिव। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, लॉयल एज। मोस्ट सुपरलेटिव में यूज होता है, ओके डन। सो दिस इज द बेस्ट आंसर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। नाउ चेक आउट द नेक्स्ट। As soon as he entered the room, he noticed the unusual presence. यहाँ लगा है as soon as. This is the hint. अगर सेंटेंस में as soon as लगा है और आपको बोला जा रहा है उसको नेगेटिव करो, तो इजी वे no sooner लगा के सेंटेंस को नेगेटिव किया जा सकता है। no sooner लगाने का रूल है, no sooner हमेशा और हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में लगेगा। नो सूनर के इमीडिएटली बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट लगेगा। ये ट्रिक अगर याद रही तो नो सूनर वाला कोई भी सेंटेंस प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। चेक आउट। एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम ही डिड नॉट मिस द अनयूजुअल प्रेजेंस, तो ये रॉन्ग। As soon as he entered the room, he unnoticed the unusual presence. No. As soon as हटता है तो no sooner लगेगा। No sooner did he enter the room than he noticed the unusual presence. मैंने आपको बताया है no sooner के बाद helping verb लगेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ सब्जेक्ट भी लगा है, लेकिन गलती क्या है अभी हमने डिस्कस किया, जब भी डिड यूज हो रहा है उसके बाद V1 लगता है, ये V2 है, तो ये रॉन्ग है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड, नो सूनर के बाद डिड लगा है, ये करेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है, ये करेक्ट है, उसके बाद V1 लगा है, ये करेक्ट है। सो नो सूनर डिड ही एंटर द रूम, जब भी आप नो सूनर लगा रहे हैं आपको देन लगाना कंपलसरी है। तो नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस,
दिस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आज का ग्रामर सेशन बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, सारे के सारे सेंटेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे आंसर्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो इफ़ यू वांट मी टू अपलोड मोर वीडियोस ऑन योर क्वेश्चन बैंक, जस्ट गिव योर फीडबैक, गिव योर positive feedback, so that is a positive booster for me. Till then, just stay safe, study hard. Thank you. Bye bye.